تو اس کے پس منظر میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کمیشن سے نہیں ملیں گے. تو غلام نبی لون ہانجورہ نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں. 370 اور 35A کو ہٹایا گیا انکانسٹیٹیوشنلی اور اللیگلی 5 اگست 2019 کو. تو اسی ری آرگنائزیشن جو پھر ہوا, بائیفرکیشن آف اسٹیٹ ہوا, لداخ کو الگ یوٹی بنایا گیا, جموں کشمیر کو الگ یوٹی بنایا گیا, اور اسی ری آرگنائزیشن کے تحت ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو بھی قائم کیا گیا, جس پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ 370 کو انکانسٹیٹیوشنلی ہٹایا گیا, اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو انکانسٹیٹیوشنلی قائم کیا گیا ہے, تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں. جو پی ایچ ڈی کے جتنے بھی کانسٹیٹوئنٹ ممبرس ہیں ان کے درمیان بالکل تال میل ہے, لیکن ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایز پی ایچ ڈی ہم کو نہیں بلایا تھا. انہوں نے ایز پارٹی نیشنل کانفرنس کو الگ بلایا, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو الگ بلایا, سی پی آئی کو الگ بلایا, دوسری پارٹیوں کو الگ بلایا. اور اس میں بات یہ ہے کہ ایز پارٹی ہم نے, ہماری پارٹی لیڈر محبوبہ مفتی نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. رہا پی ایچ ڈی کا سوال, تو یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, سپوکس پرسن ان کا طارق غنی صاحب ہے, یہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں حصہ لے رہے ہیں, یہ کیوں نہیں حصہ لے رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے, ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ 370 اور 35A کو انکانسٹیٹیوشنلی یہاں سے ہٹایا گیا, اور اسی کا حصہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو 2026 تک سارے ہندوستان میں, ساری ریاستوں میں 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے یہ زبردستی تھوپا جموں کشمیر پر, پہلے تو ناانصافی کی, ہیوملیٹ کیا یہاں کے لوگوں کو, اور یہ دوسری ہیوملیشن ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو قائم کیا گیا. اور مجھے لگتا ہے, جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو فیصلہ لینا ہے وہ فیصلہ وہ لیں گے, اور انہوں نے آلریڈی لیا ہے. یہ آئی واش ہے کہ وہ مختلف پارٹی سے مل رہے ہیں, جو فیصلہ ان کو لینا ہے وہ انہوں نے آلریڈی طے کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا آؤٹ کم, جو میٹنگ 24 جون کو ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ, اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ملا ہے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا بھی, پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ یہی بتا رہے تھے کہ انکانسٹیٹیوشنلی اور الیگلی 370 کی جو ہے ایبروگیشن ہوئی ہے. نہ صرف اتنا, بلکہ ان کا کہنا ہے کہ کمیشن ایک دکھاوا ہے, یعنی آج جو ملنا ہے یہ سارا میل ملاپ ایک دکھاوا ہے, ایک آئی واش ہے, بلکہ جو کچھ کمیشن کو کرنا ہوگا اور جو کچھ سرکار کو کرنا ہوگا وہ پہلے سے ہی طے ہوگا. تو اس طرح سے وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن کو ملاقی ہونا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بخش ہوتا. غلام نبی لون ہانجورہ بتا رہے تھے. لیکن اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر فاروق اندرابی کیا کہتے ہیں, انہوں نے بھی گلستان نیوز کے ساتھ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کمیشن کا ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ اس سے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے اندر کافی سارے معاملات تھے, مسائل تھے, کنسٹیٹوئنسی کو لے کر یا اس کی حد بندی کو لے کر, اس سے موقع ملے گا حل کرنے کا. فاروق اندرابی کیا کہتے ہیں, مکمل طور پر آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے جو آنریبل ممبر یہاں آ رہے ہیں, وہ آئے ہیں, اور ان کا ہم بالکل سواگت کرتے ہیں. یہ خوش آئندہ قدم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے, اس کے ایریاز جو ہیں, ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ بالکل فار فلنگ ایریاز ہیں, اور 2013 کے جو سینسس ہے اس کے مطابق اس میں یہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جہاں تک اپنی پارٹی کا تعلق ہے, ہم نے پہلے سے یہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں آبادی کے لحاظ سے اور جو یہاں پر غربت افلاس ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر سیٹیں جو ہیں بڑھ جاتی ہے, تو اس سے یہاں کے لوگوں کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ حل بھی ہو جائیں گے, اور لوگوں کو کم سے کم اپنے دہلیز تک انصاف مہیا ہو جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے کہ یہ کارروائی عمل میں آنی چاہیے, اور اس کا استفادہ جو ہے ریاستی عوام کو بہرحال مل جائے. سر, آپ پارٹی میٹنگ جو ہوئی تھی جس میں جا کے کچھ ڈیمانڈس اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ہوئے تھے یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہوئے ہیں, وہی پی ڈی پی کا ماننا ہے کہ جو کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا یہاں کے لیڈران نے, وہاں سے ریٹرن میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس پارٹی میٹنگ. دیکھیے, میں آپ کو بتا دوں, پی ڈی پی کا یہ کہنا یہ بالکل غلط بات ہے. میں پہلے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال جو انہوں نے برباد کر دی, 5 اگست سے لے کر آج تک, جب آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے آل پارٹی میٹنگ دلی میں راجدھانی میں بلائی اور اس نے سبھی لیڈروں, سبھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو مدعو کر دیا, پی ڈی پی کا یہ کہنا کہ کیا ملا,
लेकिन उनको ये यहाँ के लोग जो हैं सियासी तौर काफी बालिग हैं, वो समझते हैं कि पीडीपी ने 2 साल बर्बाद कर दिए। 2 साल के बाद आज वो फिर वहीं पर पहुंचे कि मतलब आज स्टेटहुड की बात होती है। आपको पता है कि अपनी पार्टी। चलिए नाज़रीन, आपने देखा डिलिमिटेशन कमीशन का श्रीनगर आमद और उसके साथ साथ पीडीपी की जानिब से यही बात कही गई कि वो इस कमीशन को मानते नहीं हैं, इसकी आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जो पोजीशन उन्होंने 370 को लेकर ली है वो उसके अगेंस्ट है। और साथ ही साथ अपनी पार्टी ने इसका वेलकम किया, न सिर्फ अपनी पार्टी ने बल्कि सभी पार्टी ने इस कमीशन का वेलकम किया है और वेलकम इस नवियत से भी किया है कि वो इस कमीशन से मुलाकी होने जा रहे हैं। बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कि गुपकार अलायंस में है और उसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और दीगर छोटी बड़ी जमातें जो उस फ्रंट का हिस्सा है जिसे गुपकार डिक्लेरेशन या पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं। सईद तजुमुल इस वक्त हमारे साथ है। तजुमुल, जानना चाहेंगे आपसे सियासत का मिजाज शहर के अंदर, कश्मीर के अंदर किस तरह का है, क्योंकि वाहिद पार्टी पीडीपी उन्होंने बाइकआउट किया है और बुनियाद ये ठहराई कि इसकी कोई आईनी पोजीशन नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि 370 की एब्रोगेशन और उसके साथ साथ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही स्टैंड था, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस मुलाकी होने जा रहे हैं, तो शहर के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, शहर में चर्चा बहुत ज्यादा था कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां जो हैं वो बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। पहली बार मरूम शेख अब्दुल्ला के बाद मुझे लगता है कि हम जब बड़े हुए हैं तो मेन स्ट्रीम लीडरान को बहुत कम इस तरह से सरकारी जेल खानों में देखा गया। लेकिन आईनी हैसियत जम्मू कश्मीर की और उसके बाद जिस वक्त 4 अगस्त 2019 के बाद पार्टियां अब तकरीबन दूसरे अबराक पलटने लगे हैं। सजाद गनी लोग कहते हैं आइडियोलॉजी को फिलहाल आगे रखे और उसके बाद अपनी पार्टी कहते हैं कि जो कुछ मिलना है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आइन के अंदर मिलना है, लेकिन जो कुछ हो गया उसे माजी समझकर खत्म किया जाना चाहिए। सजाद ने भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अब फ्यूचर के बारे में सोचें, मुस्तकबिल के बारे में बात करें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मजबूरी ये है कि एक तरफ उनके 3 MP हैं लोकसभा में और उन्हें अपनी बात रखनी है, दूसरी तरफ वो PAGD और जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करने के बाद उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया। उनका स्टैंड हालांकि जम्मू कश्मीर हुकूमत साजी में ज्यादा वक्त गुजरा है, लेकिन उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें भी कोशिश थी कि कुल जमाती मीटिंग के बाद आप डिलिमिटेशन हदबंदी कमीशन की मीटिंगों में अपना फीडबैक दे जाए, आप लोगों के नुमाइंदे हैं। लेकिन आखिरी लम्हात में जिस वक्त महबूबा मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल्ला के घर गए, हालांकि उसे PAGD की बड़ी मीटिंग बता दिया गया, बाद में अगले दिन प्रेस रिलीज तारिक अमीन साहब ने रिलीज की, लेकिन कुछ था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में खींचातानी कई बातों पर थी। PDP वजिद थी कि डिलिमिटेशन कमीशन में PAGD जो फोरम है वो अपनी बात तहरीरी तौर पर रखे, ना रखने का मतलब है कि अपनी बात नहीं पहुंची। PDP ने आज गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनके दस्तखत करदा एक लेटर को डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचाया जिसमें 4 अहम बातें हैं। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर की आईनी और कानूनी हैसियत को 4 अगस्त 2019 को आप तब्दील कर चुके हैं, हम ये काबिल कबूल नहीं करते हैं। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद बड़े मायूस हुए हैं, उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा, उनको लगा था कि शायद वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बुलावा बहुत हमने जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये है, 2 चीजें मेरे जहन में आ रही। एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ था, इससे पहले भी वो इसके एसोसिएट मेंबर इस कमीशन के नहीं बने क्योंकि उनके MP थे। वजह ये थी कि उस वक्त तक उनका ये स्टैंड था नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि ये कॉन्ट्राडिक्ट है उस मौक़िफ़ का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को लेकर अपनाया था। लेकिन आज उसमें तब्दीली लाई है और इस कमीशन से मिलने गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां PDP ये दावा करती है कि इस तरह से रॉबरी हुई है और इसको लूटा गया है, आईनी पोजीशन को लूटा गया है, और उसके बाद वो इस कमीशन की जो वैलिडिटी है उस पर सवालात उठा रहे हैं, कहते हैं कि उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है, वो गैर आईनी है। तो अब जो बाकी ज़माना काम होने हैं, चाहे इलेक्शन होना है या बाकी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर होनी है, तो उस चीज़ को PDP कहाँ, किस तरह से, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत फिर एक्सेप्ट करेगी? बड़ा अहम सवाल है। देखिए, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों की जो डेमोक्रेसी में यकीन रखना है, वो इनको, जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं, हुर्रियत, जमात इस्लामी और बाकी पार्टी, वो इंतखाबी अखाड़े में आना नहीं चाहते। वो कहते हैं 87 तक बहुत हमने देखा, बहुत सारे वोट जो थे वो गिने नहीं गए या चुराए गए। उसके बाद PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात हुए थे अर्बन लोकल बॉडीज के, उसमें बाइकआउट किया था। हालांकि इनडायरेक्ट कुछ लोगों ने ये व्हिप नहीं माना, ना डॉक्टर अब्दुल्ला का ना दीगर क़यादत का। वो मानते हैं कि इलेक्शन एक मजबूरी है, लेकिन इलेक्शन ही सब कुछ नहीं है। पीडीपी का जो मौक़िफ़ है, पीडीपी की जो इस वक्त सियासत है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इंतखाबात एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ इंतखाबाती डेमोक्रेसी ये भी नहीं है। वो मानते हैं कि जब तक आपकी हकूक यहाँ पर, जब तक आपके हुकूक के पासदार आप थे, यू वेयर टू बी द कस्टोडियन ऑफ जम्मू कश्मीर, आपने उसकी हिफाजत अच्छे से नहीं की। आपने आईनी और कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल अपने लिए रखा था क्या? जिस वक्त मरकज ने करना था उन्होंने तो किया। जिस वक्त वो कहते थे आप आइए पार्लियामेंट में बात कीजिए, लेकिन इंतखाबात जब आने वाले दिनों में होंगे, जम्मू कश्मीर पहले ही पीडीपी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती कहती है वो खुद इंतखाबी अखाड़े में नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि मशावरत के बाद हांजुरी साहब हैं, नईम साहब हैं, वीडी साहब, बाकी लोग हैं, हो सकता है कि बाकी सेकंड लाइन कमांड जो इलेक्शन में होंगे। यानी इलेक्शन में न आने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हवाले से वजीर आजम इलेक्शन कमिश्नर के गिला शिकवा करना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ तो ठीक ठाक था, आपको ये 370 और 35 से इरोड करके मिलना क्या है, जरा जाहिर करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। लिहाजा मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हवाले नहीं करना चाहती। उनकी वो सियासी जो एक रकाबत रही है और सियासी जो रिश्ता रहा है जम्मू कश्मीर, उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। पीडीपी कहती है कि 90% लीडरशिप पहले ही दूसरी पार्टी में चली गई। जिस वक्त वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती साहब कुछ थी, जिस वक्त मुश्किल घड़ी वो चले गए। अब चले नए जवानों को मौका देते हैं, पार्टियां बनती रहेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से पीडीपी का स्टैंड जो है वो आज क्लियर हो गया कि वो पीएचडी और वजीर आजम की मीटिंग के बाद भी उनके मौक़िफ़ में जरा एक भी इंच तब्दीली नहीं देखने को मिली। चलिए तजुमुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। ये थी हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सईद तजुमुल, जो हमें जो अभी इस वक्त कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन कश्मीर के अंदर मौजूद है और उसके मिलने के हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी दल या मुख्तलिफ सियासी जमातें जा रही हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से और जो अवाम के अंदर अभी तासुरात पाए जा रहे हैं उसके हवाले से रूबरू करा रहे थे। तो कुल मिलाकर सवाल अभी भी बना हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कल तक इस कमीशन का बाइकआउट कर रही थी, आज मिलने किस तरह गए, क्योंकि उनका उस वक्त तक ये मौक़िफ़ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 हटाई गई है उसे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हटाया गया है, और उसके बाद इस कमीशन का क़याम उनके लिए गैर आइनी था। लेकिन उसके बाद इसी कमीशन से मिलना मुराद क्या हो सकता है? न सिर्फ इतना बल्कि पीडीपी के लिए भी एक सवाल ज़रूरी है कि अगर आज उन्होंने इसे गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया तो फिर उसके बाद जो बाकी सिस्टम या बाकी अमल होने वाले हैं, जिसमें चुनाव भी हैं, जिसमें डीडीसी इलेक्शन थे, तो वो कैसे इस आइन के अंदर और इस कानून के अंदर हलाल हुए थे? एक ऐसा सवाल है जो अब लोग पूछ रहे हैं। चलिए नाज़रीन, सियासत के बाद अब खेल कूद का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी शुरू हो जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर इसको शुरू भी किया गया है। और उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खेल कूद को बढ़ावा दिया जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि खेल के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि कमोबेश इस साल 17 ऐसे इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्की सतह के होने वाले हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो शामिल हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा है कि गोल्फ कोर्स जो अभी तक एक एलीट क्लास के लिए या उन्हीं का खेल इसे तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब ये एकेडमी स्कूली बच्चों और गोल्फ के लिए चाहने वालों के लिए भी खुल गई है। और अब जो गोल्फ है ये हर किसी का खेल बन सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर। और इस हवाले से जो कुछ भी करना होगा सरकार की सतह पर, वो सरकार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 17 जो है कौमी सतह के स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले हैं। न सिर्फ इतना बल्कि उनका कहना है कि 750 बच्चों को फुटबॉल की आला ट्रेनिंग या आला तरबियत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें फराहम की जा रही है, ताकि वो मुल्की और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी बन जाए और अपना नाम फुटबॉल है उसमें कमाए। उनका ये भी मानना है कि लगभग 3405 मैचों में जो होने वाले हैं, लगभग जो है 1,50,000 के आसपास बच्चे या खिलाड़ी यहाँ शरीक हो जाएंगे और उनकी जो उसमें प्रेजेंस है वो मुतवक्का है, क्योंकि उनका मानना है कि तकरीबन ऐसे 11 इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के बच्चे शामिल हो सकते हैं। और कई प्रशिक्षण से हम जम्मू कश्मीर में भी
जीव मिल्खा सिंह, अर्जुन अटवाल, शिवशंकर चौरसिया, अदिति, अशोक, स्मृति और शर्मिला जैसे चैंपियन तैयार कर सकते हैं। नौजवान साथियों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की सभी विधाओं में एरिस्टोक्रेटिक दायरे से बाहर निकालने और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम प्रारंभ किया स्पोर्ट्स काउंसिल ने और हमारे यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि अब गोल्फ भी एरिस्टोक्रेटिक खेल जो लोग मानते हैं, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, हमारा टूरिज्म और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये कोशिश करेगा इसे भी सामान्य आदमी के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चे बच्चियों के लिए, वे बच्चे जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी अवसर मिले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चनाजी, ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, जो बता रहे थे कि खेलकूद के हवाले से गांव देहात तक सरकार का पहुंचना बहुत मुमकिन है और इस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। सियासत के हवाले से भी बात हुई है और उसके साथ साथ खेलकूद के हवाले से भी बात हुई है, लेकिन जो बात ज़रूरी करनी वो यही है कि जो अवाम के मसाइल है, जिसमें आज अगर बाज़ारों में जाए और सब्ज़ी खरीदी जाए तो 100 से कम कोई भी सब्ज़ी नज़र नहीं आ रही है। लोग काफ़ी तंग है, काफ़ी परेशान है। लोगों का मानना है कि खेलकूद की तरफ तो तवज्जो है, सियासत की और इलेक्शन की तरफ तो तवज्जो है, लेकिन जो सब्ज़ी है, जो मटर है, जो प्याज है, उनकी कीमतों की तरफ सरकार का कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि तवज्जो होती तो शायद आज इनके दाम भी कहीं ठिकाने होते। तो इस वजह से मकामी लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका मानना है कि कमाई कुछ नहीं, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। न सिर्फ सब्जी के बल्कि जितने भी फल हैं उनके भी रेट्स जैसे पेट्रोल की दामों की तरह ऊपर ही चले गए हैं। कौन सी सब्जी नहीं काम होता है, दब दब लोग क्या बच्चे क्या रहते बैठे यूँ तो सब्जी के इधर तुम हर कुछ चीज़ सरकारी दाद में मुझको ना मिलता सरकार किसी पका रखेगी कौन सी पका मैं होम भाई कहर ने दुनिया भर में तो कमर तोड़ ही दी है, मगर साथ ही साथ अगर बाजारों को लेकर बात करें तो इस वक्त जो दाम है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, लोग परेशान हैं। उनका मानना है कि एक साइड से पहले लॉकडाउन चला, लोगों के पास कोई कामकाज नहीं, जबकि अब बाजार भी खुल गए, अनलॉक भी है, मगर अनलॉक के साथ साथ सब्जियों के दाम और खाने पीने की चीजों के दाम सर चढ़ के बोल रहे हैं। सरकार तो नरकनामे तय करती है, मगर नरकनामों को लेकर बात करें तो जमीनी स्तर पर उसे अमलाए नहीं जाते हैं। लोगों का भी ये मानना है आखिरकार हो क्या रहा है, जबकि कोरोना भी चल रहा है और साथ ही साथ ये मुसीबत की मार भी चल रही है। लोगों की अपील सरकार से यही है कि खास तौर पर अगर इस वक्त सब्जी और खाने पीने की चीजों के हवाले से बात करें तो उसमें नमी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पापी पेट का सवाल है बाबा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए आप बात करते हैं डाड़ाओपरा चाडोरा इलाके के, जो कि जिला बड़गाम में पड़ते हैं। ये दूर दराज एक इलाका है और यहाँ पर ऑनलाइन बच्चे तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एयरटेल और जियो का टावर था वो काफ़ी वक्त से डिफंक्ट है। लोग कहते हैं कि जब ये टावर चल रहा था तो वो कमोबेश अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे पाते थे और वो बच्चे भी तालीम से मुस्तफ़ीद हो पाते थे, लेकिन अब टावर को बंद किया गया है क्योंकि इसकी बिजली की सप्लाई नहीं है और जो कंसर्न कंपनी है वो भी इसको शुरू करने या उसको बहाल करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। न सिर्फ इतना, जियो का भी यही हाल है और अब ये हाल सिर्फ इस पर्टिकुलर डाड़ाओपरा इलाके का नहीं है, बल्कि दर्जन भर इलाके जो इस टावर के साथ मुंसलिक हैं या डिपेंडेंट है, उन्हें भी अब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं जहाँ के बच्चे टावर ढूंढ रहे हैं लेकिन टावर मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो टावर कंपनियां हैं वो उन्हें ये सहूलियत आज के डेट में फराहम नहीं कर रही है। कंसर्न डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में भी उन्होंने लाया, एसडीएम की नोटिस में भी लाया और दर्जन भर इलाके डाड़ाओपरा, चाडोरा, जोहामा, करालवारी और उसके साथ साथ सुरस्यार, इन इलाकों में आज ये फैसिलिटी जो नेटवर्किंग की है वो मखदूश होकर रह गई है। नतीजा ये है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन टावरों की तरफ और जो यहाँ
मवासलाती निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के हवाले से कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है वो मुदाखलत करे, SDM साहब मुदाखलत करे, तहसीलदार साहब मुदाखलत करे, और जो कंसर्न कंपनियां हैं जियो और एयरटेल की वो भी थोड़ा सा इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि मकामी आबादी को मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। मैं गुलाम रसूल भट्ट, मेरे गांव का नाम है मौजे डाउडोपर, ये तहसील चौडरा में मशहूर एक गांव में पड़ता है। जियो वालों ने 3-4 साल पहले यहाँ पोल खड़ा किए मगर अभी तक नेटवर्क उनका बहाल नहीं है। कल से 2-3 दिन से यहाँ एयरटेल जो फंक्शन कर रहा था वो बिल्कुल बेकार है। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, क्लासेस जो उनके हैं वो उससे महरूम हो गए हैं। दूसरी कोई किसी को मजबूरी होगी, कॉल तो ज़रूरी है। इनकम यहाँ बहुत है इस वक्त एयरटेल वालों को, हमारे डारों पर ये बहुत बड़ा गाँव है मगर पुरसान हाल नहीं है। कोई उनका मुतल्लिक यहाँ जिम्मेदार नहीं आया है। मसला तो उनका है, उनको तो हल करना चाहिए। हम तो अपनी फीस अदा कर दें, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे, कोई नेटवर्क ना क्लास वो दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। एक तो हम आपके ज़रिए से, आपकी वसादत के ज़रिए से मुतल्लिक़ अदारे से गुजारिश करते हैं कि वो ये हमारे प्रॉब्लम इस ख़तरनाक मुश्किल को हल करे। हम चाहते हैं कि एक तो हमारा एयरटेल का मसला पूरी तरह वो उसको बहाल किया जाए। दूसरा जियो जो 3 साल से आप सर देख सकते हैं पोल खड़ा किए गए, नस्ब किए गए पोल। उधर चंचक टंगमर्ग के मकामी लोगों ने भी आज एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि वहां से जो रोड गुजरती है उसकी हालत काफ़ी अबतर है। मर्दों निकले थे, बच्चे भी थे, एहतजाज कर रहे थे कि सड़क की हालत काफ़ी कच्ची है, यहाँ से चलना महाल हो जाता है। 15 साल पहले RNB की जानब से इस सड़क प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था लेकिन आज तक इससे पुख्ता नहीं बनाया गया। लोग मार्स पे, चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, सड़कें बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन टंगमर्ग का ये चंचक इलाका यही बता रहा कि जैसे ये कदीम दौर चल रहा है, क्योंकि यहाँ से आज भी जब लोग पैदल चलते हैं तो कीचड़ उनके जो पाँव खा लेते हैं। तो इस तरह से मकामी लोगों का मुतालबा है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मुश्किलात का इजाला हो जाए। तो रोड यपर खसान यह तकरीबन आज ब्रो 15 वरी कोड़मुत RNB मगर 15 वरी पत वुनिस तान आय ना अत पे कहीं ति मरम्मत करना यम कन छन चक मोश खोड़ ये पे ब्या जियारत शरीफ तो तौर तह मगर युस और अक लट सह दोम लट सह दपान बह मुसीबत मज फसास। मेहरबानी तो मेहरबानी कर सन गुजारिश RNB यस दपान तिमन अगर तुह तिम रोड करू यम रोडन न कह वक्त यमन न पकुन तो यह सोन रोड क्या गसान। उधर चकजमाल पट्टन के मकामी लोगों का मानना है कि इलाके में कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं है, यानी कोई हॉस्पिटल नहीं है। उनका मानना है कि उन्हें तबी सहूलियात हासिल करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कई गाँव क्रॉस करके जाना है, जबकि यहाँ एक बड़ी आबादी इस गांव में रह रही है, लेकिन उनके लिए न कोई सब सेंटर है, न कोई PHC है और न कोई डिस्पेंसरी है। नतीजा ये है कि मकामी लोग सेहत के मामलात में तबी सहूलियात को लेकर या उनके हसूल के लिए दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। रोजान चकजमाल ये आबादी कम से कम 650 वस मतलब पॉपुलेशन 650 650 मज गो वुनिक तमत कम से कम 3 वरियन मज वन आव ना हेल्थ सेंटर ये लकुट मोकुट गाम बिलो पावर्टी लाइन मज वनस सारी जुमरस मज मगर अस प्रॉब्लम ये लकुट मोकुट डिस्पेंसरी हेल्थ सेंटर आसन यूथ कि रात किस एमरजेंसी गसान केस गसान हेकान सह मतलब फॉलो कर पटनस मज या पलहलस मज क्या प्रॉब्लम ये डिलीवरी या मतलब मतलब कह प्रॉब्लम तिथ प्रॉब्लम एमरजेंसी सह मतलब पटन हस्पताल मज वात कहें गुजारिश करान गवर्नमेंटस कि कम से कम लकुट मोकुट हेल्थ सेंटर। तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।